Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Everybody put on your cams quickly. Okay. So we are saying this is the midpoint ellipse drawing algorithm. Okay. Now what we discussed is that if we have an ellipse, okay, this is the center of it, 0, 0. And we said that we cannot have the symmetry, 8-way symmetry, rather we have the 4-way symmetry, because if we draw this like this, now these two regions, region 1 and region 2, they are different. They have different set of points. If we draw, say, for region 1, we will not be able to form the region 2. But if we form both the regions, region 1 and region 2, that means we make this quadrant, okay, we draw this whole arc, then this arc and this arc and this quadrant, they are symmetric. So we have the 4-way symmetry, okay. And here we said that we have region 1 and we have region 2, okay. In a region 1 behaves differently than the region 2. So if we talk about the region 1, what is the slope in region 1? Yes, tell me, what is the slope in the region 1? Is the -1. Yes, it is. Is the negative. आवाज कम क्यों है इसमें? वॉइस मत मेरी कम है. Oh, बंद थी वॉइस. Yes, what is the slope in the region 1? Less than -1. Yes, it is less than -1. It is less than -1. Slope is less than -1. What will happen to the x and what will happen to the y in the region 1? X increment. X all the time increments, okay. What will happen to the y? Y may or may not be decremented. Very good. It may decrement or may not decrement. The situation is like this, that if we have these, say for example, the points, and the line is going this way. So if this is my y-axis, my x-axis, say this is 1, 2, this is 1, 2. So y for this point was 2 and x was 1. So the coordinates were 1, 2 for this point, okay? For another point, this one. So now if I have to draw this line and I may have to choose between these two points, should I go for this pixel or should I go for this pixel? The decision is to be made. So if I go for this pixel, that means I am not decrementing y. Y stays same as 2. But x has incremented to 2. It was 1, now it is 2. But if I chose this pixel, then y is also decremented to 1. As you could see, y has become 1 and x has also incremented from this position, which was x was 1. So 1 se 2 ban gaya. So 2, 1. So if depending upon which pixel you chose, admit all. Depending upon which pixel you chose, okay, you either decrement y or you do not decrement y. Y stays as y. That means if I say this is y of I, right now here, this is x of I and y of I. Okay, what will happen to the x of I? x of I को बनेगा, जो x of I होगा उसको +1 हो जाएगा. यानी कि जो यहाँ पे x of I जो ये है वो होगा उसको +1 होगा, लेकिन ये x of I +1 है. That means next x, यानी कि इस पॉइंट का x क्या होगा? ठीक है ना, समझ में आ रही है? इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. देखिए मैं इसको पहले रब करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे. ओके, अब बताएं मुझे, जो ये वाला है से हम इस पॉइंट पे है और हमें डिसाइड करना है इन दो पिक्सेल्स के दरमियान. सो दैट मीन दिस इज माय x of I. So x of I was what? 1 and y of I is how much? 2. y 2 है इसका, x इधर 1 है इसका. ठीक है ना? जो नेक्स्ट x है यानी कि इस पिक्सल का, इस पिक्सल का, दैट आई विल कॉल x of I +1. दैट मीन जो x of I था उसके बाद जो x है, नेक्स्ट x. So that's, I can say this is the next x is equal to whatever the x of I was, जो पुराना x था यानी कि ये वाला जो x था उसको आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे. अगर ये 1 था तो वो 2 बनेगा, बनेगा ना? दोनों सूरतों में 2 बनेगा.
लेकिन जो y ऑफ i प्लस 1 है वो क्या रहेगा, या तो वो होगा y ऑफ i जो था उसको -1 करूंगा, यानी कि y ऑफ i था 2, यानी कि ये वाला मेरा y ऑफ i प्लस 1 अब है, लेकिन नेक्स्ट y, या ये लूंगा या ये लूंगा। अगर मैंने ये लिया तो उसमें y ऑफ i जो था ऑलरेडी, जो y ऑफ i था दैट इज 2 था यहाँ पे, उसको मैं -1 करूंगा, ठीक है ना। या y ऑफ i स्टेज एज y ऑफ i, यानी कि अगर मैंने ये वाला पिक्सल लिया जो y ऑफ i था, y ऑफ i प्लस 1 भी, जो y ऑफ i प्लस 1 यानी कि ये वाला इसका y ऑफ i प्लस 1 वो वही रहेगा जो y ऑफ i था, यानी कि जो पुराना y था, है ना। सो y ऑफ i इज नाउ y ऑफ i प्लस 1 इज नेक्स्ट, i प्लस 1 इज नेक्स्ट, ठीक है। जैसे यहाँ लड़के हैं, मैंने i रखा है माजिद के पास, माजिद के बाद आ रहा है महराजुद्दीन, महराजुद्दीन के बाद आ रहा है आजान। सो महराजुद्दीन i मेरा है, तो i प्लस 1, सॉरी माजिद मेरा i है, सो i प्लस 1 इज नाउ महराजुद्दीन, ठीक है। अगर मेरा i प्लस 1 यानी कि जो मेरा i प्लस 1 है उसका वैल्यू या तो पुराना ही रहेगा या एक इंक्रीमेंट होगा, अगर y होगा या तो पुराना रहेगा या एक डिक्रीमेंट होगा। तो y जो आपका है वो एक डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक डिक्रीमेंट, अगर मैंने ऊपर वाला पिक्सल लिया। सो ये किस पे मुनसर होगा, ऑन सम डिसीजन वेरिएबल, वी विल डिस्कस दीस डिसीजन वेरिएबल्स टुडे, जो ये जैसे कि हमने सर्कल में किया था, बरसनहम एंड मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। लेकिन अगर रीजन 2 है मेरा, इफ आई गॉट अ रीजन 2, रीजन 2 में स्लोप क्या है, Greater than -1. greater than -1, very good. What will happen to the x, x of i plus 1, नेक्स्ट x किसके बराबर होगा, वो या तो x of 1 or i, less. x of i होगा, या x of i plus 1 हमारा पास होगा x of i plus 1, या तो इंक्रीमेंट होगा वो या नहीं होगा, x पे डिसीजन लगेगा। तो डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करेगा x करना है इंक्रीमेंट या नहीं करना है। लेकिन y of i plus 1 क्या हो जाएगा हमेशा, Always decrement. so y of i minus 1, whatever the y of i is उसको -1 करें। ये बात समझ आ गई। ये कैमरा क्यों ऑफ है सबका, ये नहीं चलता इधर, ये कैमरा ऑन रखे सारे। सर कैमरा ऑन ही है सर। सर ऑन है। मुझे बहुत उन्होंने आदम का तो ऑन है, लेकिन आदम का नहीं है। जैसे इंशा कयूम है, सईद बतूरा है, जीशान अली, हिना फयाज जो फोन ही खराब, ताबिर बट, दानिश यूसुफ। भाई आप लोगों का कैमरा क्यों ऑफ आ रहा है, कैमरा ऑन करें। अभी तक नींद से नहीं उठे क्या, now let us write the algorithm and program you will write of your own, that is same thing as your circle drawing algorithm, only thing is you have to change the decision variable and all, कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, डिसीजन वेरिएबल करना है, बाकी आप खुद करने चाहिए इसको। ये एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम किसका, मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम, दिस इज मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिथम। कासिम सर को कुछ फोन का मसला है, जियो का मसला है, कुछ है, ही विल गिव क्लास फ्रॉम द कॉलेज, उनको वहां घर में चलता नहीं है, कुछ जियो कुछ मसला है, ठीक है ना। अच्छी बात है, मैं 9 बजे ही दूंगा, वरना मुझे प्रॉब्लम होती है फिर क्लास देने में। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली बात यह है कि जो आपका इलिप्स होता है उसमें कितने रेडी होते हैं, So 2. दिस इज r ऑफ x एंड दिस इज r ऑफ y। अभी आप देखेंगे इस इलिप्स में r ऑफ y ज्यादा है, r ऑफ x छोटा है। मैं इलिप्स ऐसे भी बना सकता हूं, ये इसका r ऑफ x है, ये इसका r ऑफ y, यानी कि एक रेडी छोटा होता है एक बड़ा होता है, तब जाके वो इलिप्स बनेगा। अगर सारे रेडी सेम हो गए फिर वो क्या होगा, देन इट इज अ सर्कल, ठीक है ना। नाउ स्टेप 1 में क्या करेंगे हम करेंगे रीड, हाँ जी क्या करेंगे, रेडिए Radius. r ऑफ x एंड r ऑफ y। r ऑफ x और r ऑफ y को आप ऐसे x और y लिखना चाहिए सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए r ऑफ x r ऑफ y। कल फॉर्मूला में मैंने शायद x सीधे ही लिखा ना, ऐसे r ऑफ x, इट शुड बी लाइक r ऑफ x, x नीचे होना चाहिए ताकि पता चले कि रेडी ऑफ x है। ओके, स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं, इनिशियलाइज करूंगा मैं, क्योंकि पहला पॉइंट जब मैं करूंगा, पता है मुझे, जो मैं पहला पॉइंट बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा ना मैं, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट
what will be its coordinates? बोलिए जल्दी। इसका x कितना होगा, इसका y कितना होगा? x एक्सिस तो ये है ना, ये x एक्सिस है, 0 1 2 so on। ये y एक्सिस, ये y एक्सिस है, 0 1 2 3 4 5 6 whatever, इतना जितना ये r of y। एग्जैक्टली। इना फयाज खाली बोल रही है, बाकी क्यों चुप है? क्योंकि ये जो इसका इस पॉइंट का जो y है वो इतना है ना जितना आपने ट्रेवर्स किया है y, वो कितना है, r of y। और x में आप बड़े ही नहीं है कुछ, तो x तो 0 पे है ना, जैसे सर्कल में था, सर्कल में था 0 एंड r, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ y डिफरेंट है देन रेडियस ऑफ x, सो वी हैव टू से रेडियस ऑफ y। सो इनिशियलाइज क्या कहूंगा मैं, x of I is equal to 0 and y of I is equal to r of y। ठीक है, क्लियर? What should I do next? I need to have the initial decision variable। और मैं थोड़ी सी बुक्स में डिफरेंट होता है, और अब देखोगे उसमें वो कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला, लेकिन सिंपल फॉर्मूला बनाने के लिए मैं डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई कैलकुलेट करूंगा, और वो जो उसकी फॉर्मूला है वहां पे मैं डी ऑफ एक्स ही लगाऊंगा बाद में फॉर्मूला में। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, कैलकुलेट इनिशियल डिसीजन वेरिएबल। करते थे ना डीवी ऑफ 0 सर्कल में, वैसे ही यहाँ पर भी इनिशियल डिसीजन वेरिएबल करेंगे, उसकी अपनी फॉर्मूला है, दैट इज डी। क्योंकि यहाँ डिसीजन वेरिएबल दो होंगे, सर्कल में एक ही डिसीजन वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ दो होंगे, रीजन 1 के लिए अलग, रीजन 2 के लिए अलग। ठीक है, रीजन 1 का अलग होगा, रीजन 2 का अलग, इसलिए मैं इसको कहूंगा डिसीजन वेरिएबल ये 0 है लेकिन 1, डीवी ऑफ 1, डीवी 1 ऑफ 0 मींस डिसीजन वेरिएबल 0, इनिशियल डिसीजन वेरिएबल, दैट विल बी इक्वल टू आर ऑफ y का स्क्वायर, दिस इज r ऑफ y का स्क्वायर, ये याद रखनी पड़ेगी फॉर्मूला आपको, r ऑफ x का स्क्वायर एंड r ऑफ y प्लस 1/4 ऑफ r ऑफ x का स्क्वायर। दिस इज माय इनिशियल डिसीजन वेरिएबल फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। यानी कि आप प्रोग्राम में सीधे ये करोगे, पहले x आपका ये है, y ये है, और पहले आप जो है रेडी मांगोगे यूजर से। इन ए प्रोग्राम व्हाट यू डू, यू विल आस्क यूजर द रेडियस, लेकिन दो रेडियस मांगोगे, आप लोग बताओ रेडियस ऑफ x एंड रेडियस ऑफ y इलिप्स के लिए, फिर उससे आप फिर डिसीजन वेरिएबल निकालोगे। ठीक है ना, डिसीजन वेरिएबल इस तरह निकालोगे, जो भी r ऑफ y आपका होगा, जो रेडियस y होगा उसको स्क्वायर करोगे, r ऑफ x को स्क्वायर करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे r ऑफ y से, प्लस करोगे 1/4 ऑफ r ऑफ x स्क्वायर, ये सीधे फॉर्मूला लिखोगे आप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ रही है? नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप 4। ठीक है, कैलकुलेट, यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई, ये हमें जरूरत लगेंगे आगे फॉर्मूला को सिंपलीफाई करने में, वरना ये जरूरी नहीं थी। मैक्सिमम बुक से नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो सीधे ही फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे डी ऑफ एक्स बराबर है ट्वाइस आर ऑफ वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो ये है आप इसकी जगह सीधे लगा सकते हो, जो आप ये चीज लगा सकते हो डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, या हम डी ऑफ एक्स लगाएंगे इसकी जगह जहां ये जरूरत होगा। ठीक है, इस तरह डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ट्वाइस और ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये मैंने डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई निकाला, ये हम करेंगे स्टेप 5 हम जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला पिक्सल प्लॉट करेंगे, ये वाला पिक्सल, प्लॉट दिस फर्स्ट पिक्सल। सो फर्स्ट पिक्सल जब मैं प्लॉट करूंगा, मैं कहूंगा शुड वी पुट पिक्सल है, पुट पिक्सल करूंगा मैं किसको, एक्स और वाई को। ठीक है, पुट पिक्सल करूंगा एक्स में, बन गया ना वो पिक्सल, वो पहला वाला पिक्सल बन गया। उसके बाद स्टेप 6 में मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, पिक्सल्स को डालना पड़ेगा और डिसीजन वेरिएबल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। देयर इज वन चैट, लेट मी सी व्हाट इज दैट। हाँ, जीसान अली, आई नो यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ, बट व्हाटएवर अदर्स, पीर अंजुम, माजिद, रियाज को कैमरा ऑफ आ रहा है, दानिश यूसुफ एंड ताबिर भट्ट।
कीप योर कैमरास ऑन। स्टेप 6 में हमें पता है कि अगर आप डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 आया या डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 आया तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, है ना। अगर हमारा रीजन 1 है उसकी बात, क्योंकि हमारा पहला रीजन 1 ही है ना, जब हम ड्रा करें तो पहला ही रीजन है, सो वी हैव अ रीजन 1। लेकिन फिर जब वो रीजन 1 खत्म होगा फिर रीजन 2 शुरू हो जाएगा। फिलहाल हमें देखने की जरूरत नहीं है कि हम रीजन 1 में है कि कहाँ है, क्योंकि हम रीजन 1 में ही है। सो ठीक है, सो हमें स्लोप देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रीजन 1 में हूँ। तो मैं कहूंगा इफ जो डिसीजन वेरिएबल मेरा था ऑफ आई, जो भी था डिसीजन वेरिएबल of 1, because dv1 decision variable 1 for region 1, if this is less than 0। फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ेंगी, ये तो रखनी पड़ेंगी ना आपको। अब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर ये लेस देन 0 हुआ तो x इंक्रीमेंट होगा ही होगा, लेकिन अगर डिसीजन वेरिएबल लेस देन 0 है तो यानी कि मैं ऊपर वाला पिक्सल ले रहा हूं, उसमें x इंक्रीमेंट होगा, y को कोई चेंज नहीं होगी। सो मैं कहूंगा x of I plus 1 will be equal to whatever the x of I was plus 1, यानी कि x को प्लस प्लस करेंगे, x इंक्रीमेंट हो जाएगा। What will happen to the y? y को कुछ नहीं होगा। और मैं डिसीजन वेरिएबल जो है अब नया कैलकुलेट करूंगा, दैट इज dv of I plus 1। नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल जो मेरे पास होगा, दैट इज whatever the dv of I was, the previous decision variable was, plus d of x plus r of y square। इसलिए यहाँ पे d of x की जगह आपने देखा होगा जो बुक्स में अगर देखोगे वहां ये लिखा होता है। अब मैंने वो पहले ही कैलकुलेट किया ताकि मुझे आसानी हो फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पे d of x का ट्वाइस r y स्क्वायर x हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पे उसकी जगह d of x लिख दिया। ये मेरा निकलेगी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर मुझे पहली बात कि अगर डिसीजन वेरिएबल जो इनिशियल डिसीजन वेरिएबल था वो लेस देन 0 था, ठीक है, तो उसका मतलब मुझे पिक्सल लेना है ऊपर वाला। उसका मतलब है y को डिक्रीमेंट नहीं करना है, x को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन y को डिक्रीमेंट, तो मैं x को इंक्रीमेंट कर रहा हूं, y को डिक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसका एल्स, अगर डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 हुआ तो मुझे x को भी इंक्रीमेंट करना है और y को भी डिक्रीमेंट करना है, लेकिन मैं कौन सा पिक्सल ले रहा हूं, नीचे वाला पिक्सल। सो दैट मींस x of I plus 1 is equal to, अगर आपने सर्कल का एल्गोरिथम देखा फिर तो ये सिंपल है, अगर आपने वो नहीं किया है तो फिर आपको परेशानी होगी। y plus 1 is equal to y of I minus 1। ये इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट होगा, यानी कि मैं नीचे वाला पिक्सल ले रहा हूँ, ये वाला पिक्सल जो मैंने पिक्सल बनाए थे यहाँ पे, यानी कि मैं ये वाला पिक्सल ले रहा हूँ, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रही है, माइक बंद करे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किसको आवाज आ रही है। ओके, तो जो मेरा डिसीजन वेरिएबल होगा अगर वो लेस देन 0 होगा तो ऊपर वाला पिक्सल लूंगा, यानी कि x को इंक्रीमेंट करूंगा, y को डिक्रीमेंट नहीं करूंगा। लेकिन और डिसीजन वेरिएबल नया कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद एल्स, वरना मैं x जो इंक्रीमेंट होगा और y डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। और मैं नया d of x एंड d of y निकालूंगा। d of x will be now new, that is twice r y square x, and d of y is equal to twice r x square y। ये थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, ये जो था d of x था twice r y square x, ओके, ये मैं फिर से एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, twice r y square x and d of y is equal to twice r x square y। और स्टेप 7 में क्या करूंगा मैं ये चीजें रिपीट करूंगा, आई विल रिपीट दीज स्टेप्स इन अ लूप, ओके। कब तक करूंगा, रिपीट steps 5 to 6, okay, till d of x is less than d of y। जब तक d of x less than d of y है तब तक करते जाओ। जो ही d of x d of y के बराबर हो गया, हमें पता चला कि हम उसके ऊपर है, किसके ऊपर, जहां स्लोप जो बीच में हम है, यानी कि ऑक्टेन खत्म हो गया, एक ऑक्टेन खत्म हो गया, यानी कि मैं रीजन 2 में जा रहा हूं। जो यहां तक से यहां तक, ठीक है, आपका जो ये देखें, यहां पे बनाता हूं मैं,
ठीक है, ये जो डी ऑफ एक्स है ये लेस देन डी ऑफ वाई होगा इस सारे आर्क में। जो ही यहाँ डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई के बराबर हो गया, उसका मतलब ये है कि मैं गया हूं इधर, आई एम गोइंग टू द रीजन 2। तो उसका मतलब है कि मुझे अब रीजन 2 की बात करनी चाहिए। अब रीजन 1 खत्म हो गया, क्योंकि ये वापस जाएगा ना स्टेप 5 पे। स्टेप 5 पे यहाँ वापस जाएगा, पुट पिक्सल करेगा, फिर डिसीजन वेरिएबल से डिसाइड करेगा कि मुझे एक्स को क्या करना चाहिए, वाई को क्या करना चाहिए, वापस जाएगा 5 के ऊपर, और उस एक्स और वाई को अगर इंक्रीमेंट एक्स हुआ है, वाई डिक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उस हिसाब से वो एक्स एंड वाई पिक्सल पॉइंट करता जाएगा। इस हिसाब से ये सारे पॉइंट करता जाएगा, ये सारे पॉइंट्स करता जाएगा जब तक कि डी ऑफ एक्स छोटा है डी ऑफ वाई से। जो ही ये डी ऑफ एक्स ग्रेटर हो गया डी ऑफ वाई से, उसका मतलब है कि मैं इधर हूं, इस रीजन में हूं, रीजन 2 में हूं। तो इसलिए अब स्टेप 8 जो मेरा होगा वो रीजन 2 की बात होगी। स्टेप 8, so for step 8 I need to calculate decision variable second, ठीक है, for which region? Region 2. Region second or region 2, whatever you say. So that is here, decision variable I of 2 is equal to initial decision variable इसका होगा, that is r of y square, ये फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी आपको, r of y square x plus 1 divided by 2 का होल स्क्वायर प्लस r of x का स्क्वायर y minus 1 का स्क्वायर माइनस r of x स्क्वायर सॉरी r of y स्क्वायर, ठीक है, r of x स्क्वायर r of y स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिसीजन वेरिएबल 2। तो डिसीजन वेरिएबल सेकंड हमारा होगा, उसकी फॉर्मूला ये है कैलकुलेट करने की। तो स्टेप 9 में अब क्या देखूंगा मैं कि क्या डिसीजन वेरिएबल आया ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। पहले मैं पुट पिक्सल करूंगा, स्टेप 9 में पहले पुट पिक्सल करूंगा, मैं उस एक्स एंड वाई को प्रिंट करूंगा, क्योंकि ये होगा ना वो बाउंड्री वाला पॉइंट, ऐसा बाउंड्री वॉल पॉइंट कुछ हो या बराबर सो बाउंड्री हुन पॉइंट तम पत वस ये बोन, इसलिए करम गोड सो पुट पिक्सल। अम पत कर स्टेप 10 मज वन जज कि आया ये जो डिसीजन वेरिएबल था, डिसीजन वेरिएबल 2 था ऑफ आई, क्या ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0, ठीक है। अगर ये इसमें ग्रेटर देन पे काम करते हैं पहले, एल्स में लेस देन में, इसमें पहले लेस देन पे काम करते थे, ये इसमें फर्क है। डिसीजन वेरिएबल 1 में लेस देन 0 पे काम होता था, डिसीजन वेरिएबल 2 में ग्रेटर देन 0 पे काम हो रहा है। और अगर ग्रेटर देन 0 है डिसीजन वेरिएबल 2, तो x को कोई चेंज नहीं होगी और y जो होगा वो डेक्रीमेंट होगा। सो x जो मेरा होगा, x of i plus 1 will stay as x of i and y of I plus 1 will be y of I minus 1, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्कल में किया आपको। लेकिन अगर आपने सर्कल के ऊपर काम नहीं किया, उसका प्रोग्राम नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे डी ऑफ वाई देखूंगा, दैट इज ट्वाइस आर ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये मैं कैलकुलेट करूंगा डी ऑफ वाई यहाँ पे। इसके बाद और नया डिसीजन वेरिएबल 2 ऑफ i plus 1 किसके बराबर निकलेगा, दैट इज व्हाटएवर द डिसीजन वेरिएबल 2 ऑफ i वाज माइनस d ऑफ y प्लस ट्वाइस r ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस r ऑफ x स्क्वायर। सो ये डिसीजन वेरिएबल जो है दिस विल बी फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। जो डिसीजन वेरिएबल हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल डिसीजन वेरिएबल, उसके बाद पुट पिक्सल करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का जो डिसीजन वेरिएबल है वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज दिस थिंग। और इसका एल्स क्या होगा, जरा इसका एल्स बताओ क्या होगा। x of I plus 1, what will happen to the x of I? It will remain same. No, No. it will Increment, because be same यहाँ पे incremented. It's I plus 1. सेम यहाँ पे रखा है ना। हाँ, y का क्या हो जाएगा, y का Y will always decrement. y will always decrement, very good। एक ही लड़की बोलती है दैट इज हिना फयाज, बाकी क्या दिल, बाकी को लगता है सांप सूख गया है। What happened? पढ़ते नहीं हो घर में कुछ। और मैं इसमें फिर डी ऑफ वाई कैलकुलेट करूंगा, दैट इज व्हाटएवर द डी ऑफ वाई वाज माइनस ट्वाइस आर ऑफ वाई का स्क्वायर, एंड इसमें डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करूंगा, दैट इज डी ऑफ व्हाटएवर द डी ऑफ एक्स इज
प्लस ट्वाइस आर ऑफ वाई स्क्वायर, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है। ये सिंपल है, फॉर्मूला है, याद रखनी है। और नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल 2, इस सूरत में क्या निकलेगा, जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल हम निकालते हैं ऐसे, और इस एल्स में क्या निकलेगा, दैट इज व्हाटएवर द डिसीजन वेरिएबल वाज, डिसीजन वेरिएबल ऑफ व्हाट इज दिस, डिसीजन वेरिएबल 2 ऑफ आई, जो पुराना इसका डिसीजन वेरिएबल था, यानी कि जो पहले निकला था, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं प्लस करूंगा डी ऑफ एक्स, उसको माइनस करूंगा डी ऑफ वाई स्क्वायर, डी ऑफ वाई इज नॉट स्क्वायर, और उसको प्लस करूंगा आर ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज माय फॉर्मूला। यानी कि जो मेरा पुराना डिसीजन वेरिएबल होगा उसको डी ऑफ एक्स प्लस करूंगा, डी ऑफ वाई माइनस करूंगा, आर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस करूंगा, ठीक है। और इस तरीके से मेरा नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल निकलेगा एंड दे कम बैक टू इट। एंड स्टेप नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेप, कितना था ये, 10 11। स्टेप 11 में क्या करूंगा मैं, आई विल रिपीट, क्या हो गया, आई विल रिपीट स्टेप 9 and 10 till y is greater than 0। जब तक y greater than 0 है तब तक, क्योंकि y जो ही 0 बनेगा मुझे पता चल गया कि मैं एंड पे आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूंगा, अभी पहले देखें, ये 0 0 है। अब मैं यहां से आ रहा हूं ना, यहां से, और यहां से मैं कब तक करूंगा, जब तक y आपका 0 से बड़ा है। जो ही y 0 हो गया, दैट मींस आई एम हियर, सो आई शुड स्टॉप, आई शुड स्टॉप एंड व्हेन y is 0, क्योंकि y इसका अब 0 है इस पॉइंट का। इसके बाद y नेगेटिव चला जाएगा ना, -1 -2, अगर मैं इसके बाद जाऊंगा तो वो नहीं करना है, यानी क्वाड्रेंट आपका खत्म हो गया। यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो गया, व्हेन y hits 0। जब तक y ग्रेटर देन 0 है तब तक करते जाओ, जो ही y 0 हो जाएगा स्टॉप करो, दैट मींस यू हैव डन विद द क्वाड्रेंट। डू यू अंडरस्टैंड? लेट मी recap it a bit to make you understand. We have a few minutes left. So this is my algorithm of midpoint ellipse drawing algorithm, जिसमें मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो मेरा ellipse होगा, फर्ज कीजिए ellipse है, ये इसका 0 0 पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका रीजन 1 है और ये आपका रीजन 2 है। यहां स्लोप आपकी -1 होगी, slope m is equal to -1, less than -1, and slope m is greater than -1 here, okay, and on this point slope m is equal to -1, ठीक है। इसमें मैं dx और dy निकालूंगा, जब तक dx जो है छोटा है dy से तब तक चलता जा, यानी कि यहां तक जो ही d of x बड़ा हो गया d of y से रुक, उसके बाद ये आपका रीजन सेकंड आ जाएगा। रीजन सेकंड में आप क्या काम करेंगे, रीजन सेकंड में आप अपना काम करेंगे जैसे हमने किया था ये फॉर्मूला के हिसाब से, और जो ही y 0 हो जाता है वी विल स्टॉप, ठीक है। और स्टेप जब आपने ये किया, साथ साथ आप क्या करोगे काम, ठीक है, आपको यूजिंग रिफ्लेक्शन, स्टेप 12 में आप क्या करोगे काम, यूजिंग रिफ्लेक्शन ड्रॉ अदर पॉइंट्स आल्सो, ठीक है। इसमें अभी जो होंगे हर एक पॉइंट का हम यूजिंग रिफ्लेक्शन यहाँ पे स्टेप करेंगे, वो इंक्लूड करना आप इसको। रिपीट स्टेप 5 and 6 टिल dx and dy, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या हो जाएगा, जो पुट पिक्सल आप करते हो, जहां पुट पिक्सल आप करते हो ना, ये 5 जो पुट पिक्सल करते हो आप, यहाँ पे आपको पुट पिक्सल x and y करना है, ऑल्सो पुट पिक्सल बाय रिफ्लेक्शन, to satisfy 4-way symmetry। ऐसा कोई पिक्सल पॉइंट 4 पिक्सल करें, एक पिक्सल से 4 करें। अगर मैं पिक्सल द्रावितन से फर्ज कीजिए मुझे यहाँ पे एक पिक्सल निकला, कहाँ गया, अगर यहाँ पे एक पिक्सल द्रावितन 0.4, सो उसका यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कल दिखाया ना 4, उसके माइनस प्लस 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 माइनस, उसके करने हमें 4। अगर हमारे पास प्लस प्लस आ रहा है, उसी चीज का माइनस प्लस यहाँ पे, सॉरी प्लस माइनस नीचे यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, इस क्वाड्रेंट में आएगा माइनस माइनस, इस क्वाड्रेंट में उसी का, फर्ज कीजिए मेरा कोई पिक्सल है उसका वैल्यू है 2 2,
तो उस 2 2 का मैं +2 -2 -2 -2 और -2 +2 करूंगा तो बनेगा ना 4। सो हर कल ये बता चुका हूं ना मैं, जब आप क्वाड्रेंट में जाओगे, इस क्वाड्रेंट में जाओगे तो वहां पे x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, और वो रूल हो जाएगा व्हेन यू मूव अक्रॉस द x एक्सिस है, मूव x y एक्सिस। तो एक पिक्सल जो ही आप पॉइंट करोगे, आप 4 और पिक्सल पॉइंट करना है, ठीक है। यू हैव टू, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर एट स्टेप 5 also put pixel by reflection to satisfy 4-way symmetry। और यही आपको इसमें भी करना है, जहां पुट पिक्सल करते हो यहाँ पे भी 4-वे सिमेट्री का आपको वो पिक्सल ड्रा करने पड़ेंगे। समझ में आई? तो ये सिंपल है कि हमने क्या कहा काम। मैं फिर एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, टाइम कम बचा है। इंसर्ट, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ सर आपसे, एक मिनट यार, मेरा फेस ही नहीं आया इसमें। एक मिनट बचा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप एक बात हमको याद रखनी है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो आप इसमें बोर ही हो जाओगे। अगर आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है, आपको ऑलरेडी पता है चीजें, तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम सर्कल में कर चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है ना। सर्कल में मैंने बहुत सारा टाइम दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। आप उसका आप रिविजन नहीं करोगे, आप उस पर कॉपी नहीं करोगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। नाउ आई एम सेइंग कैलकुलेट इनिशियल डिस्टेंस वैल्यू। पहले आप क्या करेंगे, आप रेडियस ऑफ एक्स, ये आपका रेडियस ऑफ एक्स है और ये रेडियस ऑफ वाई है, ये बोलेंगे यूजर से दे दे, वो दे देगा। तो इनिशियलाइज करेंगे एक्स ऑफ आई, जो वेरिएबल आपके पास होंगे, और वाई ऑफ आई जो होगा उसमें आप डालेंगे ये 0 एंड आर ऑफ वाई, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है एक्स 0 है और वाई इसका आर ऑफ वाई है। वाई एक्सिस जितनी भी वाई आपकी ये है रेडियस है उतना है इसका। सो इसका जो है एक्स 0 है और वाई इसका कितना है, आर ऑफ वाई। तो वो करेंगे, फिर डिसीजन वेरिएबल निकालेंगे, ये फॉर्मूला है इसका डिसीजन वेरिएबल। और फिर देखेंगे आपकी जनाब, फिर मैं dx एंड dy भी निकालूंगा ताकि मेरी फॉर्मूला इजी हो जाए। उसके बाद मैं पुट पिक्सल करूंगा, मैं उस x एंड y को पिक्सल को करूंगा और साथ साथ 4 और वेरिएबल्स भी करूंगा, जिस तरह हम सर्कल में 8 करते थे ना कुल, क्योंकि वो 8वीं सिमेट्री थी, यहाँ पे 4 करें, यानी कि हर क्वाड्रेंट में एक एक पॉइंट इसका आ जाए। उसके बाद मैं देखूंगा क्या है डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल 1, बिकॉज़ डिसीजन वेरिएबल 1 विल बी फॉर रीजन 1 एंड डिसीजन वेरिएबल 2 विल बी फॉर रीजन 2। डिसीजन वेरिएबल 1 में देखूंगा मैं सर क्या वो छोटा है 0 से, अगर वो छोटा है 0 से तो क्या करेंगे काम, x को इंक्रीमेंट करो, y के साथ मत छेड़ो और नया डिसीजन वेरिएबल निकालो इस फॉर्मूला से। वरना x को भी आप इंक्रीमेंट करो और y को डिक्रीमेंट करो और नए डी ऑफ x एंड डी ऑफ y को कैलकुलेट करो फिर से। उसके बाद स्टेप 5 और 6 को रिपीट करें आप, कब तक, जब तक कि डी ऑफ एक्स छोटा है डी ऑफ वाई से, क्योंकि इस रीजन में डी ऑफ एक्स छोटा होता है डी ऑफ वाई से। जो ही यहां पहुंचेगा डी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा डी ऑफ वाई के, उसके बाद डी ऑफ एक्स बड़ा हो जाएगा डी ऑफ वाई के। इसलिए आप पता चल गया कि मेरा रीजन जो है, मैं रीजन 1 खत्म हो गया, आई शुड स्टॉप। सो आई शुड स्टॉप व्हेन डी ऑफ एक्स इज लेस देन डी ऑफ वाई। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे डिसीजन वेरिएबल सेकंड, डिसीजन वेरिएबल सेकंड करके कैलकुलेट आप, तो उसकी फॉर्मूला ये है। और आप पुट पिक्सल करोगे वो x एंड y और उसके साथ साथ 4 पिक्सल्स करोगे और फिर देखोगे क्या डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, x को मत करो इंक्रीमेंट, y को डिक्रीमेंट करो और डिसीजन डी ऑफ y निकालो नए से। और डिसीजन वेरिएबल सेकंड जो है उसकी न्यू फॉर्मूला, जो नेक्स्ट डिसीजन वेरिएबल है उसकी फॉर्मूला ये है, इससे कैलकुलेट करो। वरना x को भी इंक्रीमेंट करो और y को डिक्रीमेंट करो और डी ऑफ y और डी ऑफ x को कैलकुलेट करो नए से, ठीक है। उसके बाद और डिसीजन वेरिएबल नेक्स्ट की ये फॉर्मूला है फॉर रीजन सेकंड, ठीक है। और ये स्टेप्स रिपीट करें 9 to 10, कब तक, जब तक कि y ग्रेटर देन 0 है। जो ही y ग्रेटर देन 0 होगा, हमें पता चल गया हमने पूरा एक क्वाड्रेंट प्रिंट किया, पुट पिक्सल उनका किया हमने क्वाड्रेंट का। नाउ व्हाट एल्स, देन यू विल स्टॉप, you will stop at y is greater than 0, yes।
ठीक है, we have less than 1 minute left. If anybody has a question, he or she can answer. Ask, sorry. इसको आप कॉपी करें, फॉर्मूलाज को जहन में रखें, ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कुछ खास नहीं है, ये खुद ही याद हो जाती है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ये खुद ही डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, एक्स को स्क्वायर वाई को स्क्वायर, कभी रेडियस ऑफ वाई को स्क्वायर, कभी रेडियस ऑफ एक्स को स्क्वायर, इतना ही है। ये लगता है ऐसे प्राइमा फेसी, ये लगता है कि ये टफ फॉर्मूलाज है, टफ फॉर्मूलाज नहीं है। आप अगर आप देखोगे कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, या आर ऑफ वाई स्क्वायर है, फिर आर ऑफ एक्स का स्क्वायर है आर ऑफ वाई, और 1/4 आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई के बगैर कुछ है नहीं, उनकी कॉम्बिनेशंस है, थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है जी। सो टाइम इज ओवर, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास इन कॉलेज, ओके, आफ्टर एग्जाम। पता नहीं एग्जाम का कुछ पंगा वहां पे 11:30 एग्जाम होने वाला था, लेकिन कह रहे हैं कि वहां पे इन्विजिलेटर के ज्यादा हो गए हैं, सो दे कैन नॉट हैंडल इट, मे बी मेरा आफ्टरनून हो गया बिफोर होगा। सो अगर आफ्टरनून में क्लास हो गया